हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर सीटी स्कोर whether you are a student planning to take the common entrance test which is CT, or a parent supporting your child's education journey, or a student who has just randomly started their preparation. So this video is for you. एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर अवेयरनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड इन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. ऑल्सो गाइज, वी हैव एन important announcement to put forward that all the law entrance related videos will be only available on Manure Law Entrance channel. So hit the subscribe button right away to get notified about the latest videos on Manure Law Entrance channel. And you all can see a glimpse of all these updates. All you have to do is follow us on Facebook, Instagram, and you all can also join our Telegram channel as well. We have also launched the batches for the law entrance preparations. So for live class, you all can call on 8828581455, and for classroom coaching, you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy, and a lot more to ace our entrance exam in the first attempt. Now guys, starting with the important factors to consider for CET score, these are the factors, one of which is cutoff scores, then application deadlines, eligibility criteria, choice of law colleges, exam pattern, marking system, previous year trends, effective preparation, financial considerations, backup options, about their notifications and documentations as well. So guys, starting with the cutoff scores, research the cutoff score required by your desired institute or your law college. These scores often vary from college to college. So guys, your aim is to meet or exceed their expectations. Now this chart right in front of you is on the basis of 2023 cutoff. So here you all can see score range, and यहाँ पर आप देख सकते हो number of candidates. So 129 score सिर्फ एक कैंडिडेट का आया है and 128 स्कोर एक कैंडिडेट का आया है. ये सारे स्कोर्स आउट ऑफ 150 कंसिडर किए गए हैं. 120 से 126 के बीच का स्कोर 65 स्टूडेंट्स लेकर आए हैं, एंड 111 to 119 के बीच का स्कोर 550 स्टूडेंट्स लेकर आए हैं. इस हिसाब से गाइस यहाँ पर आप डेटा क्लियरली देख सकते हो एंड कंपटीशन के लेवल का अंदाज़ा भी लगा सकते हो गाइस. इन स्कोर्स पे गाइज 120 या 125 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं टॉप कॉलेजेस में एंटर होने के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज महाराष्ट्र का टॉप लॉ कॉलेज है, एंड ILS पुणे भी वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस में आता है. यहाँ पर जो आप कट ऑफ देख सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए रहा है 113 एज पर 2023 कट ऑफ, एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ रहा है दैट इज़ 121. OBC के लिए 99, SC के लिए 98, ST के लिए 878 एंड EWS के लिए 102. इसी तरह से ILS के लिए भी कट ऑफ आ गया है गाइस फॉर महाराष्ट्र स्टेट. अगर आप कैंडिडेट हो, ILS टारगेट कर रहे हो, सो इस साल का जो कट ऑफ रहा है दैट इज़ अराउंड 108. OMS स्टूडेंट के लिए इस साल जो कट ऑफ रहा है दैट इज़ 119, OBC के लिए 94, SC के लिए 88, ST के लिए 60 एंड EWS के लिए 98. उसी तरह से गाइज इन टॉप कॉलेजेस के जो कट ऑफ के डेटा है वो आपके सामने है. यू ऑल कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और यू ऑल कैन इवन नोट दिस कट ऑफ आउट. सो येस, ये सारे टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए आपको कट ऑफ के बारे में भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सो दैट उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशंस इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशंस और इफेक्टिव बना सकते हो. बिकॉज गाइज कट ऑफ एंड कॉम्पिटिशन इज़ रियल, आपको उतनी प्रिपरेशंस करनी ही है. Next guys, about the application deadlines. So guys, it is important for you all to familiarize yourself with the application deadlines for the law colleges and for the CET examination as well. So make sure you submit your applications well before the deadline to ensure your CET scores are considered. यहाँ पर guys वैसे तो इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेडलाइन नहीं होते हैं गाइस. CET के बाद जो कैप राउंड प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है आपके महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस में एडमिशन होता है. बट ये कैप राउंड के लिए एंड CET के लिए भी आपको जो है एप्लीकेशन डेडलाइन पर खास ख्याल रखना होता है. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम हाईलाइट्स के साथ जो है एप्लीकेशन डेडलाइन भी हम डिस्कस कर लेते हैं. एंट्रेंस एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाता है गाइस, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ MHCET लॉ. कंडक्टिंग बॉडी जो होती है इसकी
होती है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन मुंबई। ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है गाइस। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपके एडमिशन्स होते हैं महाराष्ट्र बेस्ड लॉ कॉलेजेस में। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एप्लीकेशंस ओपन होने वाली है मार्च की फर्स्ट वीक में, जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस भी मार्च की लास्ट वीक के आसपास होगी गाइस। इस साल जो है एप्लीकेशंस ओपन एंड एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी उसके बीच काफ़ी कम टाइम रहा था। एग्ज़ाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। MCQ टाइप में जो है आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। सो यस गाइस, इतना जो डेटा है इस पर आपको खास ख्याल रखना है। यू ऑल हैव टू कीप एन आई ऑन द एप्लीकेशन डेडलाइन, बिकॉज अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपके प्रिपरेशंस का इतना कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज आप एग्जामिनेशन ही नहीं लिख पाओगे। Next, eligibility. So guys, carefully read and understand the eligibility criteria which is set by the law colleges and CET cell as well. This includes the minimum education qualification, age limit and other specific requirements. Ensure you meet all the eligibility criteria before applying. So here if I talk about the qualification about the eligibility criteria, then the candidate should be passed 10+2 or an equivalent with minimum 45% mark अगर आप जनरल और AWS कैटेगरी में हो, 42% मार्क्स अगर आप VG NT SBC OBC कैटेगरी में आते हो, 40% मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी में। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। प्लस पॉइंट ये है गाइस, यहाँ पे जो है एज लिमिट नहीं है, सो येस देयर इज़ नो एज बार, डेफिनेटली ऑल कैन अप्लाई। नेक्स्ट, अबाउट चॉइस ऑफ लॉ कॉलेजेस। सो गाइस, इट इज़ extremely important for you all to research and create a list of law colleges that accept CET score for your desired program. Consider factors like location, reputation, faculty, infrastructure when you are making your choices. कॉलेजेस से रिलेटेड गाइस हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। महाराष्ट्र में जितनी भी लॉ कॉलेजेस है, टॉप लॉ कॉलेजेस है, एरिया वाइज कॉलेजेस हैं, हमने उन लोकेशन वाइज कॉलेजेस को भी कवर किया है, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया है अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, about the course curriculum, about the placements एंड फी स्ट्रक्चर सीट्स एज वेल। सो आप वो सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पे ज़रूर देख सकते हो, विच इज़ मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल। मेक श्योर यू चेक आउट अ चैनल फॉर द इन डिटेल इन्फॉर्मेशन। जिस भी कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज पे जो है आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस फिर भी कोई और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कॉमेंट ज़रूर कर सकते हो। नाउ यर विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द चॉइस ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो यहाँ पे जो है कुछ मैंने लॉ कॉलेजेस के नेम्स लिस्ट किए हैं जो कि टॉप लॉ कॉलेजेस में आते हैं, विच इज़ GLC, पॉपुलरली नोन एज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, then ILS Law College which is in Pune, Praveen Gandhi Law College, Navalmal Firodia Law College, Rizvi Law College, University of Mumbai Law Academy, Manikchand Pahade Law College, then GH Rai Soni Law College, Progressive Education Society Modern Law College, TY Patil Unitech Society Law College, यशवंतराव चौहान लॉ कॉलेज, सिंघड़ लॉ कॉलेज एंड पीपल एजुकेशन सोसाइटी एडवोकेट, बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ एंड मराठावाड़ा मित्र मंडल शंकरराव चौहान लॉ कॉलेज। सो इसके साथ साथ और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि टॉप लॉ कॉलेजेस में आती है, बट आप जो है इन कॉलेजेस को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। इन कॉलेजेस का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, कोर्स करिकुलम, फी स्ट्रक्चर, काफ़ी सारी चीज़ें, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट GLC विच इज़ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, क्योंकि यह मुंबई बेस्ड कॉलेज है, मुंबई में लोकेटेड है, चर्च गेट लोकेशन पे। यहाँ पे आपको इजी एक्सेस मिल जाता है टॉप लॉ फर्म्स, कोर्ट्स, जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो, एंड आप जो है एक लीगल फील्ड में रहते हो, लीगल एनवायरनमेंट में रहते हो, जिसके थ्रू आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है एंड आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का जो टाइमिंग होता है वो आई थिंक मॉर्निंग का होता है। सो उसके बाद जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं एंड दे टेक अप इंटर्नशिप, दे लुक अप फॉर जॉब्स, दे मूव आउट ऑफ द कॉलेज एंड दे विजिट द कोर्ट्स एंड अदर लॉ फर्म्स। सो इससे जो है उनका एक्सपोजर और बढ़ता है। सो येस गाइस, यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कंसिडर करें फैक्टर्स लाइक द कॉलेज लोकेशन, रेप्यूटेशन, देयर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन यू आर मेकिंग योर चॉइसेस। Next is nothing but the exam pattern. So guys, familiarize yourself with the exam pattern, including the number of sections, types of questions, duration of the exam. It is highly recommended to practice mock test
to become comfortable with the format. You all can check out our actual law CET level mock test on our website. Link is given in the description. This technique will help you plan the preparation strategy effectively. यहाँ पे guys जो आपका पेपर पैटर्न है बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, विच इज़ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड बेसिक मैथमेटिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो 40 क्वेश्चंस फॉर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए 40, इंग्लिश के लिए 30 एंड मैथ्स के लिए 10. यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स पर क्वेश्चंस इज़ 1 मार्क एंड यहाँ पे हो जाता है आपका टोटल मार्क्स विच इज़ 150 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द मार्किंग सिस्टम. सो यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 120 मिनट्स का पेपर रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एंड 150 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि MCQ फॉर्मेट में होंगे. सो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट which is CET cell. Next, about the previous year trend. So guys, it is extremely important to analyze the previous year cutoffs and the exam trends for your desired law colleges. Cutoffs के बारे में guys हमने already discuss कर लिया है. Talking about the previous exam trends, so guys you all can check out our YouTube channel as you all can see right here. आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस के वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो पास्ट ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस को लेकर, पेपर को लेकर, वो आप इन वीडियोस के थ्रू ज़रूर समझ सकते हो. दीज आर पेपर एनालिसिस, एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर. सब सेक्शन वाइज भी जो है आपको और वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. सो मेक श्योर यू चेक आउट दीज वीडियोस. ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके प्रिपरेशंस को एक किक स्टार्ट देने के लिए. वाई? बिकॉज दिस कैन गिव यू इंसाइट्स इनटू द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. क्या आपका पेपर जम्बल्ड फॉर्मेट में आया था या कौन से फॉर्मेट में आया था, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगी. सो यस, प्रीवियस ट्रेंड्स पर भी एक आई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपका CET स्कोर मैटर करेगा. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द इफेक्टिव प्रिपरेशंस. सो यस, बाकी सारी चीज़ों के साथ गाइज आपकी प्रिपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपकी CET स्कोर को इंक्रीज करने के लिए. सो गाइज, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेडिकेट टाइम टू योर थरो प्रिपरेशन. It is recommended to enroll in coaching classes or use high quality study materials, and regular practice and mock tests are essential to improve your CET score. Start by understanding the exam pattern. It is extremely important guys. Don't just randomly start your preparations कि आपने बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया. But understand the exam pattern first. Know the number of sections, types of questions and their marking scheme which we just discussed. Collect relevant study materials including books, preparation materials, previous year paper analysis videos. Develop a realistic and detailed study schedule that covers all the subjects and topics which are included in your syllabus. Allocate sufficient time for each subject, focusing on your weak areas. Thoroughly cover the entire syllabus including topics in the legal aptitude section, general knowledge, logical reasoning, English, maths. because guys syllabus जो है आपका थोड़ा सा वास्ट रहने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारे सेक्शंस जो है आपको इसमें कवर अप करने हैं. इसके साथ ही गाइस आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है. सो डे 1 से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए. देन यू विल हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड अदर टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू बिकम फेमिलियर विद द एग्जाम फॉर्मेट एंड टाइम मैनेजमेंट. एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. Develop effective time management skills during your preparations and during the actual examination. Allocate specific time limits for each section to ensure you complete your paper within the given time. इसके लिए गाइस आपको मॉक टेस्ट पे इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Legal aptitude is a crucial section guys. Study fundamental legal concept, landmark cases, legal reasoning, solve legal aptitude questions regularly to enhance your analytical and logical reasoning skills. Stay updated with current affairs, especially in the areas to law and legal matters. Read newspapers, magazines and online news resources regularly. You all can even check out our sectional programs for these particular sections. If you are confused, if you are in a weak in a certain area or specific area, these video lectures will definitely help you out. Work on improving your vocabulary, grammar and comprehension skills. Practice reading comprehension exercises.
enhance your logical reasoning abilities through practice, solve puzzle, logical reasoning questions, and critical thinking exercises. Practice mathematical concepts such as arithmetic, algebra, and geometry. Regularly revise what you have learned to enforce your understanding of key concepts. Create concise notes or flashcards for quick revisions. Guys, flashcards काफ़ी काम आते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे. जब आप एंड टाइम पे फ्लैश क्रिएट करने बैठोगे, नोट्स क्रिएट करने बैठोगे, तो वहाँ आप टाइम वेस्ट कर लोगे. हाईली रिकमेंडेड है गाइस. प्रिपरेशन के साथ साथ जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप उसको नोट डाउन करके रख लो, सो दैट एग्जामिनेशन के टाइम पे रिविजन में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी. उसके साथ ही गाइस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सीक गाइडेंस. सो येस, कंसिडर एनरोलिंग इन कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन कोर्सेज. If you need additional guidance, make sure you consult with your teachers or mentors or peers if you have doubts or need clarifications on specific topic. किसी भी टॉपिक को लेके गाइस स्टक नहीं होना है. अगर आप वहाँ पे स्टक हो गए हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, so make sure you reach out to the right person. They will definitely help you out. In this case, you all can definitely connect with us. We'll help you out with your preparations and guidance and mentorship as well. Along with this, guys, we have also launched the batches for the law CT preparation, so you all can definitely consider joining us, where you will be taking care of your entire preparations from basic to advanced level teaching, where you'll get access to proper live classes or classroom coaching, video lectures for your conceptual clarity, 10,000 plus practice questions, your CET level mock test, GK and current affairs, specially curated content, and where you'll be assisted by experts who have 5+ years of exam writing experience. So yes, it is worth joining Menu Education, so make sure that you do connect with us, and we'll definitely help you out throughout your exam preparations, and after that we'll also help you out with the cap round process as well. Next, about the financial considerations. So consider the cost of legal education, including your tuition fees, living expenses, and the availability of scholarships or financial aid options as well. क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, सो येस, लिविंग एक्सपेंसेस भी मैटर करता है. सो मेक श्योर यू रीच आउट टू द लीगल एड क्लिनिक्स और एजुकेशन लोन्स और स्कॉलरशिप ऑप्शंस as well to consider to take care of your findings of financial considerations. Next, so while you're aiming for your top choice law colleges, it is important to have a backup option in case you don't achieve the desired CET score. Consider other law entrance exam as well, such as CLAT, SLAT, LSAT, ALET, CUET, NMIMS, LAT, CUET, etc. These examinations would act as a gateway for you all to enter into top law colleges. You all can take the state level examination, national level examination, or deemed university examinations, which you all can see right in front of your screen, and you can get into top law colleges as well. So guys, हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रखना भी बहुत अच्छा होता है, so that आपका जो है ईयर वेस्ट ना हो और आपका जो है इसी ईयर में लॉ कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए. Next, along with this, it is extremely important for you all to stay informed about the notification. So keep an eye on the updates and notification from the exam conducting authorities and the law schools you are applying to. Changes in exam pattern or admission procedure, these can also impact your application. CET स्कोर तक जाने के लिए गाइस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत करेक्ट, ऑन टाइम एंड स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मेक श्योर सब्सक्राइब मेन्यू और लॉ एंट्रेंस चैनल, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स ऑन टाइम कवर करते हैं विद रिगार्ड्स टू योर CET एंड कैप राउंड एज वेल. जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, हमने कैप राउंड के सारे अपडेट्स कवर किए हैं. इसके साथ साथ गाइस हमने CET की सारी अपडेट्स भी कवर की है. सो आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये भी जो है आपके CET स्कोर के लिए बहुत मैटर करता है. Along with these, there are other factors as well, like documentation. So it is important for you all to gather on necessary documents, including the CET scorecard, educational certificates, identity proof, and any other required documents for the application process. Application process में कहते हैं documentation बहुत मैटर करता है. इसकी वजह से जो है अगर डॉक्यूमेंट में एरर हुआ तो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा. साथ ही साथ आपके पर्सनल एंड करियर गोल्स भी मैटर करते हैं. Along with that, number of candidates who are appearing at the examination, level of difficulty of the paper, number of seats offered by the law college, number of students applying for the admission for counseling, ये सारी चीज़ें जो है आपके कट ऑफ में बहुत मैटर करती है. सो आपका जो कट ऑफ होता है वो इन सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है. सो यस गाइस, इन कंक्लूजन योर CET स्कोर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर एजुकेशनल एंड करियर जर्नी. सो बाय कंसिडरिंग दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज रिलेवेंस, स्ट्रक्चर, कट ऑफ्स, डेडलाइंस, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, प्रिपरेशन एंड बैकअप ऑप्शंस, you will be better prepared to navigate the CET process successfully. So guys, make sure you consider these important points and make sure that you kickstart your preparation as well. अगर आपने अब तक preparation start नहीं की है, ये दोनों
दोनों भी चीज़ें, दोनों भी फैक्टर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CET स्कोर के लिए। सो गाइस ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो CET एग्जामिनेशन लिखने का प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। सो गाइस ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब मेनी योर लॉ एंट्रेंस चैनल। एंड फिर भी कोई डाउट एंक्वायरी आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, एंड मेक श्योर टू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, जहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।